So, good morning all of you. How are you all? Fine? Okay. So, my dear student, you know that yesterday we talk इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, है ना. हमने जाना कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन और बायोलॉजी यदि मैं आपको 1 मिनट रिवाइज कराऊं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, तो अगेन लिसन टू मी. बायोलॉजी कंसिस्ट टू ग्रीक वर्ड. बायोलॉजी वर्ड कंसिस्ट टू ग्रीक वर्ड. फर्स्ट वन बायोस and second one logos. First word is bios and second is logos. Bios means life. Bios means life and logos means to study. So what is biology? Biology is a branch of science. Biology is a branch of science in which we study, in which deals with the study of animals, any living organism known as biology. It is simple definition of biology. What is biology? Our answer is biology is a branch of science in which deals study of living organism called biology. Very simple. Next question, who give biology term? Next question, who give biology term? तो our simple answer is Lamarck and Treviranus. Two scientists, first one Lamarck and second one Treviranus given a term biology in 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया था, है ना. कौन सा वर्ड? बायोलॉजी. लैमार्क एंड ट्रेविरेनस. नेक्स्ट, बायोलॉजी हैव टू ब्रांच. फर्स्ट इज बॉटनी एंड सेकंड इज जूलॉजी. फर्स्ट ब्रांच called botany and second branch zoology. What is botany? Means of botany. Botany take out a Greek word, a Greek language, एक Latin language word known as botany. Which word? Botany. Botany is a Greek language word. Greek language word means botany means आप बोल सकते हैं बास्किन और पास्चर. इनका मीन्स होता है चरना, ग्रेजिंग. ओके. जूलॉजी आल्सो टेक आउट ए ग्रीक वर्ड नोन एज जोइन और जून. दिस मीन्स एनिमल. तो व्हाट इज बॉटनी एंड व्हाट इज जूलॉजी, है ना. सिंपल डेफिनेशन, बॉटनी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ प्लांट्स, इन विच स्टडी ओनली प्लांट्स. एंड व्हाट इज जूलॉजी? जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ओनली एनिमल्स. तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम एनिमल की स्टडी करें वो तो जूलॉजी, और ऐसी ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करें वो बॉटनी, है ना. फिर आई विल टोल्ड यू बुक्स, अबाउट बुक्स. अरस्तु आर नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी, और थियोफ्रेस्टस आर नोन एज फादर ऑफ बॉटनी. अरस्तु wrote a book Historia Animalia and Theophrastus wrote a important book Historia Plantarum. Next, so my dear student, today we are going to discuss about our syllabus chapter number 16.
our syllabus chapter number 16 and zoology first chapter. First one we will talk about only zoology, not botany. Zoology in which study of any animals like our, we, हम, me. Okay, तो फर्स्ट चैप्टर इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो फर्स्ट वन बी आई विल टेल यू व्हाट इज डाइजेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइजेशन. नाउ यू रिटन टुगेदर. ओके, नोटबुक में आप नोट करते जाना भाई. फर्स्ट हेडिंग विदाउट नंबर के आपको लगानी है, डाइजेशन. डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन. तो सिंपल डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड digestion. Note it. It is definition of digestion. Note it. Fast note it, quick. Are you done? Okay, I will tell you what is digestion. Digestion means pachan. You know very well, because in 10th class you study chapter number 2. 10th class your chapter number 2 also this type chapter, in which digestion, digestive system, circulatory system, excretory system, many system be read in 10th class chapter number 2. Okay, what is digestion? It is most important definition or very simple definition. First we know कि what is digestion. तो I will tell you what is digestion. Listen to me carefully. The process of conversion, the process of conversion of complex substance into absorbable form is called digestion. Listen to me. It is food. It is food. Like breads. Okay, breads. It is food. Food contain complex substance. Food contain complex substance यानी कठोर पदार्थ like as carbohydrate, protein and fat. It is most components are found in our food. Most component substance या most component are found our foods. Carbohydrate, protein and fat. Okay, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. ये कठोर पदार्थ होते हैं. अपना जो भोजन होता है उस भोजन में ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं. 3 मेन कंपोनेंट. विच वन? फर्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन प्रोटीन एंड थर्ड वन फैट. तीनों ही कंपोनेंट वेरी हार्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मीन्स कठोर, ऐसे
ऐसे सब्सटेंस होते हैं ये जिनको हमारी बॉडी की कोई भी सेल, अगर हमारी बॉडी की कोई भी सेल इनको डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन तीनों कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से सिंपल सब्सटेंस में बदलना पड़ता है। लिसन टू मी, मैंने क्या कहा कि व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन ए नॉर्मल प्रोसेस इन विच complex substance are changed into simpler substance called digestion by the help of digestive enzyme। ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से यदि हम इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देंगे तो वही प्रोसेस डाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस which found our foods। okay, तो by the help of digestive enzyme we convert carbohydrate simple is glucose, protein simple form is amino acid, and fat glycerol and fatty acid। complex substance and simpler substance। simpler, write down, note it। note it। our food contain three main complex substance। our food contain three main complex substance are like as carbohydrate, protein and fat। तीनों ही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब इनके सिंपलर फॉर्म कौन सी हैं? तो आई विल टेल यू। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसकी सिंपल फॉर्म होती है ग्लूकोज। यू हियर इट वर्ड ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड और ग्लूकोज इज सिंपल फॉर्म। हाउ इट कन्वर्ट? by the help of digestive enzyme। okay, protein are complex substance and amino acid are simpler substance। amino acid, fat are complex substance and fatty acid are simpler substance। तो you got it? done। okay, next, तो व्हाट इज डाइजेशन? सिंपल डेफिनेशन, लिसन टू मी अगेन। द प्रोसेस ऑफ, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कन्वर्जन बदला जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कठोर पदार्थों को इनटू सिंपलर सब्सटेंस। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड को, भोजन के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में बदला जाता है, उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डाइजेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? नोट इट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट two parts। digestive system consists two parts।
like as elementary canal or digestive gland। यदि आपसे कोई पूछे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, आई थिंक यू हियर इट वर्ड इन 10th क्लास, एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकंड वन डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। ओके, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट होकर मिलकर एक बनाती हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बनाती हैं भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ होता है, आप बोलेंगे सर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मोस्टली 2 टॉपिक्स, फर्स्ट वन एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन डाइजेस्टिव ग्लैंड। It is structure of digestive system only, not physiology, not function. I will tell you what is anatomy and physiology. It is 2 word. It is 2 word. First one is anatomy and second one is physiology. Anatomy is a branch of biology in which we will study only any organs structure. यदि हम किसी भी ऑर्गन्स की केवल स्ट्रक्चर को पढ़ें तो हम उसे एनाटॉमी बोलते हैं, और यदि हम किसी ऑर्गन के फंक्शन को देखें तो हम उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। आर यू गेट इट, व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होती है, यदि हम किसी ऑर्गन की केवल स्ट्रक्चर को देखें उसे तो हम बोलते हैं एनाटॉमी, और यदि हम किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को देखें कि वो क्या फंक्शन एक्ट करता है तो हम उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। ओके, तो आर यू डन इट। नेक्स्ट फर्स्ट वन, अब नेक्स्ट हेडिंग, आवर चैप्टर इज स्टार्ट नाउ, मोस्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट हेडिंग एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, we know कि what is elementary canal, we discuss about elementary canal now, है ना। ओके, तो what is elementary canal, note it। elementary canal begins, elementary canal begins एंटीरियर, ये चौक, एंटीरियर ओपन माउथ एंड पोस्टीरियरली ओपन थ्रू anus. Note it, I will tell you, first you note it। एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एंटीरियर ओपन माउथ एंड पोस्टीरियरली ओपन थ्रू एनस। I think you note it. Okay, now listen to me, what is elementary canal, I will tell you full explain, don't worry। तो
व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल लाइक एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब, नली जिसको ट्यूब बोलते हैं ना, इस प्रकार की, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है अपनी एलिमेंट्री कैनाल, जो स्टार्ट होती है अपने माउथ से, स्टार्ट होती है अपने माउथ से और एंड होती है एनस होल पर, गुदा मार्ग पर। ठीक है, तो माउथ टू एनस, माउथ टू एनस एक ट्यूब होती है हमारी बॉडी के अंदर, हम उसी को क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, आई विल रिवाइज यू। फर्स्ट वन, व्हाट इज डाइजेशन? तो वी से दैट डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex substance into simpler absorbed form is called digestion। यानी कि अपने भोजन में, हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, यदि हम उन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से किस में चेंज कर दें, किस में कन्वर्ट कर दें, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो हम उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई? डाइजेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट टू पार्ट्स लाइक एज एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, फर्स्ट वन elementary canal and second one digestive gland, both of consist a form a digestive system. Which one? First one elementary canal and second one digestive gland. So now we will talk about first topic known as elementary canal. तो what is elementary canal? एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से लेकर, देखो स्टार्टिंग में कहाँ से? एंटीरियर, देखो एंटीरियर बोलते हैं आगे वाले पार्ट को, ठीक है, फ्रंट वाले पार्ट को, और बैक वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। और जो साइड वाला होता है ना, उसको बोलते हैं लैटरल। क्या बोलते हैं? लैटरल। ओके, तो एंटीरियर मीन्स क्या होता है? फ्रंट पार्ट, फ्रंट, और पोस्टीरियर मीन्स क्या होता है? बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट इट इज माउथ एंड पोस्टीरियर एनस। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है भाई? एलिमेंट्री कैनाल। ओके, नेक्स्ट, तो एनी डाउट? यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो बोलिए, आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। आप नीट राइट डाउन कर सकते हैं, जब भी आप पॉइंट लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना होगा नीट में ना, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, जो अभी मैं राइट डाउन आपके लिए करने जा रहा हूं। तो व्हाट इज दिस पॉइंट? इट्स लेंथ मीन्स एलिमेंट्री कैनाल्स, इट्स लेंथ 8 to 10 मीटर, 30 फीट, एबव 30 फीट। इट्स लेंथ 8 to 10 मीटर। It is very important question. Many times this question was asked in NEET exam. What type of question? कि what is the length of elementary canal? What is the length of elementary canal? तो your answer 8 to 10 meter. Right authentic answer 8 meter. How much? 8 meter. तो average 25 to 30 feet, क्योंकि कई बार क्या होता है, मीटर में ना पूछकर वो फीट में इस क्वेश्चन को पूछ लेता है कि है ना, फीट में। तो लगभग 30 फीट के करीब इसकी क्या होती है? लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की। और यदि ये आपसे मीटर में पूछता है तो आपका राइट आंसर होता है 8 to 10 मीटर। ओके,
मोस्ट वन 8 मीटर आप कह सकते हैं भाई। चलिए डन। नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉम्प्रेजाइज मैनी पार्ट्स। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं भाई, है ना। इट कॉम्प्रेसाइज मैनी पार्ट्स, लिस्ट आउट करते इस पार्ट्स को। फर्स्ट वन माउथ और वकल कैविटी, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑर्गन्स। सेकंड फेरिंग्स, थर्ड एसोफेगस, फोर स्टमक, फाइव स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। नोट इट। All parts made a elementary canal. तो you learn it. Which part consists of elementary canal? It is important point. Okay. तो first point, first organs is mouth और vocal cavity. Mouth और vocal cavity. Second one pharynx. Third one esophagus. फोर्थ वन स्टमक, फिफ्थ वन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ओके, तो दीज पार्ट्स मेड ए एलिमेंट्री कैनाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि मैं आपसे पूछूं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर है सर फर्स्ट वन माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ओके, तो सो माय डियर स्टूडेंट, वी विल टॉक अबाउट फुल डीपली एंड इंटरेस्टिंग organ to organ. Okay, first one we will talk about mouth, next vocal cavity, next pharynx, next esophagus, next stomach, small intestine, large intestine and anus. Okay, तो फर्स्ट हेडिंग माउथ एंड वक्कल कैविटी। ओके,
देखिए भाई, नोट इट, माउथ इज ए ट्रांसवर्स लाइन, माउथ इज ए ट्रांसवर्स लाइन विच, इधर ही लिख देता हूं, विच सराउंडेड अपर एंड लोअर लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स। नेक्स्ट पॉइंट, mouth leads into चलो डायरेक्ट ही लिख लीजिए, वक्कल कैविटी, वक्कल कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट, वक्कल कैविटी रूफ is called पैलेट। अंडरलाइन करना पैलेट को आप, है ना। वकल कैविटी रूफ इज कॉल्ड पैलेट। एंटीरियर पार्ट हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट पैलेट। नोट इट। Note it. Okay, listen to me. I will tell you what is mouth and vocal cavity. It's not complete here. Tomorrow I will tell you I will tell you full explanation vocal cavity, in which we will study about tongue and teeth tomorrow. Okay, now listen to me carefully. What is mouth and vocal cavity? So I will tell you, it is mouth. You look, mouth is a transverse line. Transverse line, it means this type. It is transverse line. Am I right or not? It is a transverse line. So our mouth also look like as a transverse line and surrounded by upper lips and lower lips. तो it is mouth. ओनली यही माउथ होता है भाई, ठीक है। ये लाइन है जिसको हम ट्रांसवर्स लाइन कह सकते हैं, और जो अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स से सराउंड या कवर होता है, तो इसी को बोलते हैं हम ओनली माउथ। लेकिन व्हाट इज वकल कैविटी? लिसन टू मी अगेन।
व्हाट इज बकल कैविटी? आवर माउथ लीड्स ओपन इनटू ए कैविटी, है ना? लुक एट मी, इट्स कैविटी आर नोन एज वकल कैविटी. You will find it. Where is your vocal cavity? Nothing. It is very simple. Our vocal cavity is in which we find tongue and teeth. Tongue and teeth. It is our vocal cavity. What is? It is our vocal cavity. Okay. So its mouth only. Its mouth, transverse line and upper and lower lip surrounded by our mouths. Mouth slits open into vocal cavity. Which cavity? Vocal cavity. तो vocal cavity जो रूफ है, I will tell you, it is our vocal cavity. एंड इसकी जो रूफ होती है ना vocal cavity, वो ऊपर की तरफ होती है ना. अरे भाई अपर साइड में नहीं होगी क्या? यूँ सपोज कीजिए ऐसे, है ना, इस प्रकार. ये अपना माउथ मान लीजिए आप ऐसे ना, ये माउथ है. ओके. तो ये पूरी देखो माउथ तो ये है ना यहाँ पर, और ये टोटल क्या है? ये टोटल होती है वकल कैविटी. तो वकल कैविटी की जो ये रूफ है, आप देख पा रहे हैं, ये रूफ होगी ना वकल कैविटी की? नहीं होगी क्या? बोलो. और ये फ्लोर पार्ट होगा ना, फ्लोर पार्ट. तो इसका जो फ्लोर पार्ट होता है, उस फ्लोर पार्ट पे तो होती है टंग. बोलो होती है नहीं होती? ओरल या वकल कैविटी के फ्लोर पार्ट पे तो कौन होती है? टंग होती है. लेकिन जो इसकी रूफ है ना, रूफ, वकल कैविटी की जो रूफ है, उस रूफ को हम एक नाम देते हैं पैलेट. क्या नाम देते हैं? पैलेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज पैलेट? तो वकल कैविटी की रूफ को ही हम क्या कहते हैं भाई? पैलेट कहते हैं. जो वकल कैविटी होती है उसकी रूफ को ही हम क्या कहते हैं? पैलेट कहते हैं. अब ये जो पैलेट होता है ना, वो भी टू टाइप्स होता है. ये जो पैलेट है वो भी टू टाइप्स होता है. इसके मैं एंटीरियर पार्ट की बात करूं, इट इज़ एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट. इट इज़ वेरी हार्ड. इट इज़ वेरी हार्ड. तो एंटीरियर जो पैलेट है उसे हम बोल सकते हैं हार्ड पैलेट. कौन सा पैलेट? हार्ड पैलेट. एंड पोस्टीरियर जो पार्ट है, इट इज सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट, है ना? लिसन टू मी एंड लुक एट मी. यदि आप अपनी फिंगर को वकल कैविटी में ऊपर की तरफ ऐसे करते हैं तो आपको एंटीरियर पार्ट में कुछ हार्ड लगेगा, और जैसे जैसे आप इसको बैक साइड में लेते जाएंगे वो पार्ट कोमल या सॉफ्ट होता जाएगा. ठीक है. तो जो पार्ट आपका एंटीरियर पार्ट में हार्ड है उसे तो हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, और जो बैक साइड में पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट. ओके. तो you done it and understand what is buccal cavity and what is palate, है ना? our mouth is a transverse line and leads open into buccal cavity. वकल कैविटी की जो रूफ होती है हम उसे पैलेट कहते हैं, और इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो हार्ड होता है, और पोस्टीरियर जो पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है. ओके. तो आज के लिए केवल इतना ही. टुमारो we will discuss about tongue and teeth. Okay, tongue and teeth. Okay.